സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നീതിപീഠത്തിലിരിക്കുന്നവർ സദാ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് DY ചന്ദ്രചൂഡ്. ജില്ലാതല ജുഡീഷ്യറിയുടെ ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. Who are here in attendance today for this inaugural program. It is an immense honor and privilege to welcome you all to this national conference of the district judiciary as we gather here today not merely as custodians of the law but also as a collective force dedicated to the continuous pursuit of justice, fairness and integrity within our judicial system. The district judiciary is the first point of contact for a citizen in search of justice. The district judiciary is a crucial component of the rule of law. The arc of pending cases is defined by a triangle or a pyramid, large at the base and tapering as we move upwards. Data on the National Judicial Data Grid reveals a basic truth. The district judiciary is not just the first, but more often the final point of contact for citizens. The reasons may be numerous. Many citizens are unable to afford legal representation. They have a lack of awareness about statutory rights, and there are geographical difficulties in physically accessing courts. The quality of our work and the conditions in which we provide justice to citizens determines whether they have confidence in us and is a test of our own accountability to society. The district judiciary is therefore called upon to shoulder tremendous responsibility and is aptly described as the backbone of the Indian judiciary. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അല്പസമയത്തിനകം സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ സുപ്രീം കോടതി സ്ഥാപിതമായതിന്റെ 75ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്റ്റാമ്പും നാണയവും പ്രധാനമന്ത്രി പുറത്തിറക്കി. സുപ്രീം കോടതി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദ്വിദിന സമ്മേളനത്തിൽ ജില്ലാതല ജുഡീഷ്യറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 സെഷനുകളാണ് നടക്കുക. സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്, ജഡ്ജിമാർ, ഇന്ത്യൻ അറ്റോർണി ജനറൽ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ്. ചടങ്ങിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूं कि वो इस स्मारक सिक्के का लोकार्पण कर उसे राष्ट्र को समर्पित करें. May I now request the Honorable Chief Justice of India, Dr. Justice DY Chandrachud, to present a memento to the Honorable Prime Minister of India.
On a special occasion such as this, the Supreme Court of India would also like to present a special green gift to our very special and esteemed guest. Supreme Court has planted 75 saplings of 12 different indigenous varieties in the green lungs of Delhi, that is, the Central Ridge Reserve Forest area, as a mark of respect for the Honorable Prime Minister of India. Just as the Constitution of India guarantees the sustainable growth of our rights-based jurisprudence, this green gift represents our commitment to nurturing a greener tomorrow. May we have the video played, please? On the occasion of the 75th year of the Supreme Court. ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗദീപ് ധൻഖർ ദ്വിദിന സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെത്തും. ഡെറാഡൂണിലെ CSIR ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പെട്രോളിയത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരും അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ഉപരാഷ്ട്രപതി സംവദിക്കും. നാളെ ഡെറാഡൂണിലെ രാഷ്ട്രീയ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി കോളേജ് ഉപരാഷ്ട്രപതി സന്ദർശിക്കും. തുടർന്ന് എയിംസ് ഋഷികേശിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായും ജഗദീപ് ധൻഖർ സംവദിക്കും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അടുത്ത മാസം 3-4 തീയതികളിൽ ബ്രൂണൈ സന്ദർശിക്കും. ബ്രൂണൈ പ്രധാനമന്ത്രി സുൽത്താൻ ഹാജി ഹസനൽ ബൊൽക്കിയയുടെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് സന്ദർശനമെന്ന് വിദേശകാര്യ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ അറിയിച്ചു. Minister Shri Narendra Modi, at the invitation of His Majesty Sultan Haji Hassan Al Bolkiah, is scheduled to visit Brunei Darussalam during 3rd and 4th September 2024. This will be the first ever bilateral visit by an Indian Prime Minister to Brunei. The visit coincides with 40th anniversary of establishment of diplomatic ties between India and Brunei. From Brunei, the Prime Minister will thereafter visit Singapore on 4th and 5th September 2024 at the invitation of Prime Minister His Excellency Mr. Lawrence Wong of Singapore. During the visit, there are several ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ബ്രുണൈയിലേക്കുള്ള ആദ്യ ഉഭയകക്ഷി സന്ദർശനമാണിത്. ബ്രുണൈ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി സെപ്റ്റംബർ 4-5 തീയതികളിൽ സിംഗപ്പൂരിലെത്തും. അവയവദാനം ജീവിതമാർഗമായി മാറേണ്ടതുണ്ടെന്നും അതുവഴി നിരവധി പേർക്ക് പുതുജീവിതം നൽകാൻ കഴിയുമെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയ സെക്രട്ടറി LS ചാങ്സാൻ. അവയവദാനത്തിന്റെയും അവയവം മാറ്റിവെക്കലിന്റെയും വർധനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന ചിന്തൻ ശിവറിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവർ. അംഗദാൻ ജൻജാഗ്രത അഭിയാൻ എന്ന പേരിൽ അവയവദാന പൊതുബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിൻ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും LS ചാങ്സാൻ പറഞ്ഞു. അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളും പരിശീലനം ലഭിച്ച മാനവ വിഭവശേഷിയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ശ്രീലങ്ക, മാലദ്വീപ്, മൌറീഷ്യസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി ചേർന്ന് കൊളംബോ സെക്യൂരിറ്റി കോൺക്ലേവ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ധാരണാപത്രത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒപ്പുവച്ചു. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രാദേശിക സുരക്ഷാ സഹകരണത്തിൽ സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പാണിത്. അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ പൊതുവായ ഭീഷണികളും വെല്ലുവിളികളും അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രാദേശിക സുരക്ഷ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് CSEയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൽ നടക്കുന്ന ജില്ലാതല ജുഡീഷ്യറിയുടെ ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ 75ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ തത്സമയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की. ये यात्रा है एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की. और इस यात्रा में हमारे संविधान निर्माताओं का, न्यायपालिका के अनेकों मनुष्यों तक का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है. इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी उन करोड़ों देशवासियों का भी योगदान है
जिन्होंने हर परिस्थिति में न्यायपालिका पर अपना भरोसा अडिग रखा है। भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत के गौरव को और अधिक बढ़ाते हैं। ये हमारे उस सांस्कृतिक उद्घोष को बल देते हैं जो कहता है, सत्यमेव जयते नानृतम। इस समय देश अपनी के आजादी के 75 वर्ष पूरे करके संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इसलिए इस अवसर में भी गर्व भी है, गौरव भी है और प्रेरणा भी है। मैं आप सभी न्यायविदों को और सभी देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस अवसर पर राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का जो महत्वपूर्ण आयोजन हो रहा है, मैं इसके लिए भी आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक मानी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है। आजादी के बाद न्यायपालिका ने न्याय की भावना की रक्षा की। आपातकाल जैसा काला दौर भी आया, तब न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। मौलिक अधिकारों पर हुए प्रहार तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रक्षा भी की। और यही नहीं, जब जब देश की सुरक्षा का प्रश्न आया, तब न्यायपालिका ने राष्ट्रहित सर्वोपरि रखकर भारत की एकता की भी रक्षा की है। इन सब उपलब्धियों के बीच मैं इन यादगार 75 वर्षों के लिए आप सभी विद्वज्जनों को बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बीते 10 वर्षों में न्याय को सुगम बनाने के लिए देश ने कई प्रयास किए हैं। कोर्ट्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए मिशन लेवल पर काम हो रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के सहयोग की बड़ी भूमिका रही है। आज जिला न्यायपालिका का ये कार्यक्रम भी इसी का एक और उदाहरण है। इसके पहले यहां कई लोगों ने उल्लेख भी किया, सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट ने मिलकर ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया था। इस तरह के आयोजन ईज ऑफ जस्टिस के लिए बहुत ही जरूरी है। मुझे बताया गया है यहां भी अगले 2 दिनों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। पेंडिंग केसेस का मैनेजमेंट,
ह्यूमन रिसोर्स और लीगल फ्रेटर्निटी की बेहतरी, आपने चर्चा के लिए सभी जरूरी विषय तय किए हैं। मुझे खुशी है कि सबके साथ अगले 2 दिनों में एक सेशन जुडिशियल वेलनेस पर भी रखा गया है। पर्सनल वेलनेस, सोशल वेलबीइंग की सबसे पहली जरूरत है। इससे हमें हमारे वर्क कल्चर में हेल्थ को प्रायोरिटी देने में मदद मिलेगी। साथियों, हम सब जानते हैं आज आजादी के अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है, विकसित भारत, नया भारत। नया भारत यानी सोच और संकल्प से एक आधुनिक भारत। हमारी न्यायपालिका इस विजन का एक मजबूत स्तंभ है। खासतौर पर हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भारतीय न्यायपालिका की व्यवस्था का एक आधार है। देश का सामान्य नागरिक न्याय के लिए सबसे पहले आप ही का दरवाजा खटखटाता है। इसलिए ये न्याय का प्रथम केंद्र है, ये पहली सीढ़ी है। हर तरह से सक्षम और आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकता है। मुझे विश्वास है ये राष्ट्रीय सम्मेलन, इसमें हुए विमर्श देश की अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद करेंगे। साथियों, किसी भी देश में विकास का अगर कोई सबसे सार्थक पैरामीटर है तो वो है सामान्य मानवीय का जीवन स्तर। सामान्य मानवीय का जीवन स्तर उसकी ईज ऑफ लिविंग से तय होता है और सरल सुगम न्याय ये ईज ऑफ लिविंग की अनिवार्य शर्त है। ये तभी संभव होगा जब हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी से लैस होगी। हम सब जानते हैं कि आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में करीब 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। न्याय में इस देरी को खत्म करने के लिए बीते 1 दशक में कई स्तर पर काम हुआ है। पिछले 10 वर्षों में देश ने जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आपको एक और तथ्य जानकर खुशी होगी, पिछले 25 साल में जितनी राशि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की गई, उसका 75% पिछले 10 वर्षों में ही हुआ है। इन्हीं 10 वर्षों में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए 7,500 से ज्यादा कोर्ट हॉल और 11,000 रेसिडेंशियल यूनिट्स तैयार की गई है। साथियों, मैं जब लीगल फ्रेटर्निटी के बीच आता हूं तो ई कोर्ट्स का विषय आना बहुत स्वाभाविक है। टेक्नोलॉजी के इस इनोवेशन से केवल न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी ही नहीं आई, इससे वकीलों से लेकर फरियादी तक हर किसी की परेशानियां भी तेजी से कम हो रही है। आज देश में अदालतों का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है और जैसा कि मैंने कहा, इन सभी प्रयासों में सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी अहम भूमिका निभा रही है। साथियों, पिछले वर्ष ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तीसरे फेज को भी स्वीकृति मिली है। हम एक यूनिफाइड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। हम पेंडिंग केसेस का एनालिसिस कर सकेंगे, भविष्य के मुकदमों का भी अनुमान लगा सकेंगे। पुलिस, फॉरेंसिक, जेल और कोर्ट टेक्नोलॉजी इनको इंटीग्रेट भी करेगी और इनके काम को स्पीड अप भी करेगी। हम ऐसी न्याय व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जो पूरी तरह से फ्यूचर रेडी हो गई। साथियों, आप जानते हैं बड़े बदलाव में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के साथ ही नियमों, नीतियां और नीयत की भी भूमिका होती है। इसलिए आजादी के 7 दशक बाद देश ने पहली बार हमारे कानूनी ढांचे में इतने बड़े और अहम बदलाव किए हैं। भारतीय न्याय संहिता के रूप में हमें नया भारतीय न्याय विधान मिला है। इन कानूनों की भावना है सिटीजन फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट। हमारे क्रिमिनल लॉज शासक और गुलाम वाली कॉलोनियल सोच से आजाद हुए हैं। सेडिशन जैसे अंग्रेजी कानूनों को खत्म किया गया है। न्याय संहिता की सोच नागरिकों को सजा देगा, यही एकमात्र नहीं है, लेकिन नागरिकों को सुरक्षा देना भी है। इसलिए एक और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त कानून बने हैं। दूसरी ओर पहली बार मामूली अपराधों में सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सबूत के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी मान्यता मिली है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इलेक्ट्रॉनिक मोड में समन भेजने की व्यवस्था बनाई गई है। इससे न्यायपालिका पर पेंडिंग केसेस का बोझ भी कम होगा। मेरा आग्रह होगा सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को इस नई व्यवस्था में ट्रेन करने के लिए नए इनिशिएटिव्स भी जरूरी है। हमारे जजेस और वकील साथी भी इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। जनता भी इस नई व्यवस्था से परिचित हो, इसमें भी हमारे वकील और बार एसोसिएशन का अहम रोल है। साथियों, मैं देश और समाज के एक और ज्वलंत विषय को आपके समक्ष उठाना चाहता हूं। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि यहां जो विमर्श होगा उससे देश के लिए बहुमूल्य समाधान निकलेंगे। जस्टिस टू ऑल का रास्ता मजबूत होगा। मैं एक बार फिर आप सबको इस पवित्र समारोह और समागम और चिंतन मनन में जरूर अमृत निकलेगा, इस आशा के साथ अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए धन्यवाद। आपके दिशा निर्देश और मार्गदर्शन से हमें न्याय में के क्षेत्र में नए आयाम मिलेंगे और हमारे प्रयासों को बल मिलेगा। With this, ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൽ നടക്കുന്ന ജില്ലാതല ജുഡീഷ്യറിയുടെ ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സംസാരിച്ചതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാനും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും സാധിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങളിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും അവബോധം പകരേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സുപ്രീംകോടതി സ്ഥാപിതമായതിന്റെ 75ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്റ്റാമ്പും നാണയവും പ്രധാനമന്ത്രി പുറത്തിറക്കി. സുപ്രീംകോടതി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദ്വിദിന സമ്മേളനത്തിൽ ജില്ലാതല ജുഡീഷ്യറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 സെഷനുകളാണ് നടക്കുന്നത്. സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്, ജഡ്ജിമാർ, ഇന്ത്യൻ അറ്റോർണി ജനറൽ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.